कहते हैं जिस चीज़ से इंसान अपनी शुरुआत करता है उस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। सेम गोज़ फॉर मी। मैंने अपनी रीडिंग जर्नी की शुरुआत वुमेन्स ऑथर से की थी। लाइक लिटरली जो मैंने शुरू के 10 किताबें हैं वो मैं वुमेन्स ऑथर्स के द्वारा ही पढ़ी हैं। तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट वुमेन्स in my reading journey when the Women's Day is around the corner. That is, tomorrow is Women's Day, 8th of March. And today I am here sitting and discussing women's author I have read or I wanted to read in my life and I want to read in my life. So let's go. First ever book I read in my life, literally the first ever book was by a woman, that is Lauren Asher, by Lauren Asher in the Fine Print series. This is Dreamland Beginning series, and the first book was the Fine Print, which book I didn't have. वो बुक मुझे मेरी दोस्त ने दिया था, इसलिए वो बुक मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने उसे वापस कर दिया। एंड द सेकेंड बुक ऑफ द सीरीज टर्म्स एंड कंडीशन मैंने अभी रिसेंटली इसी ईयर पढ़ा है। तो अभी मैं इतनी कैपेबल नहीं, बिकॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने वो बुक पढ़ी थी तो आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज्ड एंड सो मच, मतलब पहली बार मैं पढ़ रही थी तो आई कैन नॉट इवन रिव्यू या फिर पहली बार का एक्सपीरियंस इतना अच्छा शेयर नहीं कर सकती मैं। सो दिस इज द सेकेंड बुक आई रेड फ्रॉम हर एंड अभी इसका थर्ड बुक बाकी है। तो जब तक मैं इसका थर्ड बुक नहीं पढ़ लेती आई डोंट थिंक कि आई एम कैपेबल इनफ to review her books or to review her. So I'm just showing you guys that the first woman I read in my life was Lauren Asher, and I will not review or I will not rate her because I have not completed her books, and honestly I'm a little bit confused about her books. So let's move to the other woman. The second woman I ever read in my life was Chitra Banerjee Divakaruni, The Palace of Illusion. And इस बुक को मैंने सिर्फ कवर देख के उठा लिया था। लिटरली मुझे इस बुक को खरीदने का कोई इंटेंशन नहीं था, बट मैं अपनी मॉम के साथ गई थी बाहर और मुझे एक ऐसा लोकल शॉप दिखा जिसमें बुक्स ऐसे बाहर निकाल के रखे हुए थे। तो आई पिक्ड अप 2 बुक्स एंड दिस वाज द वन अमंग देम। एंड ये पहली इंडियन ऑथर थी जिनका मैंने बुक पढ़ा। एंड ऑनेस्टली दिस बुक इज लिटिल बिट कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर मी। इस बुक में कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हैं, जो मेरे लिए सुटेबल नहीं है, बट आई लाइक हर। Wait a second. Sorry for the interruptions. So this was all about the Palace of Illusion. Although her books is little controversial for me, but yet I do read it. And honestly, I love the writing style. Honestly, I loved her book. I loved her writing way, but the controversial part led me some of angst in me. Okay, so was about her. So the third author I read was Holly Jackson. Literally, this was the second book I picked up with The Palace of Illusion, and ऑनेस्टली आई लव दिस बुक, बट मेरे अंदर इतना वो रीडिंग का भूत नहीं सवार था कि आई वुड बाई अनदर 2 ऑफ दिस ट्रियोलॉजी एंड देन रीड इट। तो मैंने इस 2 ट्रियोलॉजी को लास्ट ईयर 2025 में कंप्लीट किया है। एंड आई पिक्ड अप गुड गर्ल बैड ब्लड from Amazon. This time I bought it from Amazon, and then I completed this book, and then I picked up the third book, which was also as good as it. And honestly, I love this book. This is the most lovable, or this is, you can say, the favorite books in my reading journey. These are the favorite. I would recommend these books to everyone, each one, whoever comes to me about this particular genre. I'm gonna obviously suggest this book, or not even to all the teenagers who are in the search of books which want to read. I would always suggest this book. This is how much I love this book. Okay, the third author I will be talking, okay, fourth author I will be talking about is Radhika Agarwal, Red Flags and Rishtas. Honestly मैं बताऊँ तो आई नहीं हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ, जब मैंने गुड गर्ल बैड ब्लड का बुक खत्म किया था तो मुझे एक आइडिया मिल गया था कि एज गुड एज डेड खत्म करने के बाद आई विल बी सो ट्रॉमेटाइज। तो मैंने एक ऐसा, मतलब रोमांस जॉनर मुझे चाहिए था जिसमें मैं लाइट फील कर सकूँ और जो मेरे को ट्रॉमा मिलेगा एज गुड एज डेड से, उससे मैं थोड़ा सा कवर अप कर पाऊँ, बिकॉज दैट विल बी सो हैवी फॉर मी। तो मैंने बिना सोचे समझे, ये रोमांस जॉनर की बुक थी, मैंने ऐसे ऑनलाइन एज गुड एज डेथ के साथ ही ऑर्डर कर दिया था। एंड दिस वॉज द बुक। ऑनेस्टली मुझे इस बुक को पढ़ने में मज़ा तो आया। आई लव द प्लॉट, आई लव एवरीथिंग, बट आई डिडंट थिंक दैट दिस वर्कड फॉर मी वेल। एज मतलब ऐसा 5 on 5 तो मेरे लिए वर्क नहीं किया, बट आई विल ऑब्वियसली गिव 4 on 5 बिकॉज मैं कहीं ना कहीं तो इसने मेरा ट्रॉमा ख़त्म किया ही है। तो वाई आई विल नॉट रेट इट गुड। तो दिस इज़ द फोर्थ ऑथर एंड दिस इज़ द सेकेंड ऑथर बाय इंडियन ऑथर आई हैव एवर रेड। ओके, let's talk about my fifth author, which is Magical Loveleen. Honestly, she is an Wattpad author, and इन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और अचानक से एक दिन इनका Wattpad पे सारी बुक्स खत्म हो जाती है, लिटरली डिलीट हो जाती है। एंड ऐश्वर्या वॉज द फर्स्ट बुक आई एवर रेड ऑन Wattpad, एंड मुझे हमेशा से ये अपने पास चाहिए था बिकॉज दिस इज अ कंफर्ट बुक आई एवर फील, क्योंकि इसमें जो इंटीमेसी है, इसमें जो
इनसिक्योरिटी है, आई समहाउ रिलेट टू इट एंड मुझे कहीं न कहीं उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगता है, तो इसीलिए मैंने इस बुक को खरीदा। ऑनेस्टली इन्हों की सारी बुक्स मुझे पसंद है, लिटरली मुझे पसंद है। एंड इनका सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगता है कि अगर सपोज़ एक बुक के किसी फीमेल लीड या मेल लीड ने जो भी गलतियाँ करी होती है, उसका पनिशमेंट उसको दूसरे बुक में मिलता ही मिलता है। लाइक अगर ये सेकंड और आई गेस 5th बुक है, 5th बुक है यहाँ पे लिखा है, 5th बुक है उनका, पूरा एक सीरीज़ है एमएचयू और इस उसमें ये 5th बुक है। ऑल्दो यू कैन रीड इट स्टैंड अलोन बट ये 5th बुक है। तो अगर इसमें जो लीड्स हैं उन्होंने अगर कुछ ना कुछ गलतियाँ करी हैं तो इसका पनिशमेंट उनको आगे चल के किसी न किसी बुक में ज़रूर मिलता है। एंड आई लव दिस थिंग कि आप अपने बुक में हीरो हो बट जहाँ आपको पनिशमेंट की ज़रूरत है, जहाँ आपको मतलब आपकी गलतियों की सज़ा मिलनी चाहिए, वहाँ आपको मिलती है। सो दिस इज़ हाउ शी प्रोवाइड्स जस्टिस टू ईच एंड एवरी कैरेक्टर एंड आई जस्ट लव दिस थिंग for her. Okay, so the next author I ever read was Ashley Poston, which is The 7 Year Slip. And honestly मुझे लगा था ये कुछ लिटरेचर टाइप का है एंड मैंने इसको कुछ रोमांस जॉनरा से रिलेट नहीं करा था, मैंने इसका कोई रिव्यू भी नहीं देखा था, तो आई लिटरली मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ लिटरेचर जॉनरा से है, तो मैं I was so skeptical about this and picked it up. But this also turns out to be one of my favorite books, and romance genre में ये मेरा favorite book बन चुका है. And I'm loving this book. Literally, I'm loving this book, and I am finding the same intimacy. This book is totally based on time travel, but ये time travel पे ज़्यादा focus नहीं करता. ज़्यादातर ये focus romance पे करता है. The intimacy between them is so good. And this book doesn't have spice, so you can read it literally. If you don't want to read spice, you can go with it. I will literally suggest this book to everyone, each one, and anyone who starts want to start reading. And this is the perfect romance book you wanna read. So the next author I'm going to be talking about is Lynn Painter, and I read Better Than the Movies recently. And this is the same story. I'm talking about the 7 Year Slip. मतलब लिटरली सेम चीज़ मेरे साथ हुई है कि शी इज़ द बेस्ट वन। लिटरली बुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसमें भी कोई स्पाइस नहीं है, बिल्कुल भी स्पाइस नहीं। दिस इज़ क्यूट एंड फनी वन। लिटरली 2 टीनेजर की कहानी है एंड आई जस्ट लव्ड इट। Bro, I just loved it. I'm gonna recommend this book to all of them, all of the newcomers coming over here wanted to read this book. I will recommend this to each and everyone. Please go and read this book because this is the cutest and funniest book. Literally, you will have a smile on your face while all the way reading this book, and I just loved it. This is another book in my favorite, or you can say I will die to read this book again. नेक्स्ट ऑथर आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज फ्रीदा मैकफेडन। लाइक लिटरली मैंने कभी हॉली जैक्सन के अलावा किसी भी थ्रिलर को नहीं पढ़ा था, बट देन माई सब्सक्राइबर्स एंड माई फॉलोअर्स रिक्वेस्टेड मी टू रीड दिस बुक एंड आई फाइनली रेड इट एंड ऑनेस्टली आई लव दिस बुक, आई लव द प्लॉट। एंड जो फ्रीदा मैकफेडन के लिए कहा जाता है कि शी इज़ द वन whose plot you cannot even predict कुछ बुक्स के लिए, तो this is just a book. I love it. Honestly, I love this book. एंड आई एम गोना रेकमेंड दिस बुक टू ईच वन। लाइक लिटरली जितने भी मैंने बुक्स आपको दिखाए हैं इस वीडियो में, सभी की सभी बुक्स मैंने किसी ना किसी को रिकमेंड करना ही है। लिटरली मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगी। अगर आप स्पाइस चाहते हो तो उसमें से सिर्फ 2 बुक्स में स्पाइस है, विच इज़ ऐश्वर्या मैजिकल लवली, एंड द सेकंड बुक विच हैज स्पाइस इज बाय लॉरेन आशर। बाकी किसी भी बुक में कोई भी स्पाइस नहीं, लिटरली 0 स्पाइस है। तो I will recommend this book to each and every teenager to read these books. Okay, next move to the authors I want to read. Authors I want to read is हॉली जैक्सन। लिटरली हॉली जैक्सन और भी बुक्स हैं जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, फ्रीदा मैकफेडन की और भी बुक्स हैं जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, लिन पेंटर के बुक्स, एशले पॉस्टन के बुक्स मैं और भी ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। फिर इंडियन ऑथर्स की बात करें तो चित्रा बनर्जी, दिवाकर उनी है, उनकी भी बुक्स मैं पढ़ना चाहती हूँ। ऑल्दो उनकी बुक्स मेरे लिए कॉन्ट्रोवर्शियल है, आई नो द अपकमिंग बुक्स विल बी ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल विल मी, बट मैं उनकी बुक्स पढ़ना चाहती हूँ बिकॉज आई लव हर राइटिंग स्टाइल। एंड सेकेंड इंडियन ऑथर की बात करें तो सृष्टि चौधरी हो गई, उनकी मैं तीनों किताबें पढ़ना चाहती हूँ। उनका क्रेज़ चला है मेरे ऊपर, लिटरली मैंने उनका रिव्यू तो ऐसे तो इंस्टाग्राम पे पॉपुलर है तो आते ही रहते हैं, बट मेरा उनको उनका क्रेज़ चला है एंड द लिस्ट इज सो लॉन्ग दैट यू कैन नॉट इवन नेम देम एंड this is the only I have read in my life, and this is some authors I remembered जिनका मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ. Not only these, Jane Austen, why there are so many books I want to read by women authors. So this is for it. Happy Women's Day to you all, and thank you for watching my videos. If you are new here, please consider subscribing, and if you are old over here, thank you so much for subscribing. And yes, not to forget, we are very close to 150 subscribers, and we are going to celebrate. I don't know how to predict this thing because I have ever thought that gaining 150 subscribers is a long term
is a very long term thing for me because 100 सब्सक्राइबर्स मेरे लिए 6 महीने का टारगेट में पूरा करना था, एंड इट completed in 2 months. So I'm very excited. Thank you for each one supporting me, and thank you for watching.